हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान सिटी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं तो वाटर साइकिल, देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। दिस इज आल्सो नोन द हाइड्रोलॉजिक साइकिल। देयर इज आल्सो कॉल्ड टू द हाइड्रोलिक साइकिल। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अर्थ इज अ watery planet of the solar system, but is a very small fraction of this is available to be animal and plant. The water is not eventually distributed throughout the surface of the earth. The major percentage of the total water on the earth is chemically bound to be rock and does not be cycle. Out of remaining nearby the 97.3% in the oceans and 2.1% of the exit of polar ice cap. There is the most important, and thus only 0.6 is a present as of fresh water in the form of is a atmospheric water vapor, and the ground soil is a water, and the ice is a cap, and the water deeps in the ocean from the reserve. The solar radiation and the earth gravitation pull of the main drive force of water cycle. There is the evaporation, condensation, and the precipitation are the main process involved in the water cycle, and this process alternative with each other. There is the most important is the three terms: is evaporation, condensation, and is a precipitation. That is the cycle. Water cycle is the main role alternative in the and the water is the ocean, lake, pond, and river. Steam and the soil surface is evaporate by the sun as a heat energy, and the plant also is a transfer of huge amount of water through their leaves, and the water remain in the vapor state is air and form of cloud, and with draft with their winds is a cloud meet with their is a cold air is the mountainous as a regional above the forest, and the condense to be a air rain, and from which they fall due to gravity. Here show this diagram. There is evaporation from the ocean, earth, and the leaf surface, and the goes way to the formation of cloud, and the precipitation here, and the surface run of the accumulation of us a groundwater. There is a run of it is the ocean, and steam and the river, and goes ways to the plant. The plant here is a transpiration and evaporation here. There is a most important water cycle here. The one average is the 84% of the water is lost from the surface of the ocean by evaporation, and while the 77% is the gain by its form of precipitation, and the remaining 7% of the ocean's evaporation is balanced by the water run off through their rivers from to the land. That is the most important here. दोस्तों, यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है जल चक्र। देखिए, वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, इसे हाइड्रोलिक साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी सौर मंडल का एक जल युक्त ग्रह है, लेकिन इसका बहुत ही अल्प भाग पादपों एवं जंतुओं के उपलब्ध है। कहते हैं पानी पृथ्वी की सतह पर सामान्य रूप से वितरित नहीं है। आपको पता है कि पानी सामान्य रूप से हमारे पृथ्वी पर वितरित नहीं है। पृथ्वी का अधिक प्रतिशत जल जो है रासायनिक रूप से चट्टानों में जो है आत्मसात है और चक्रीय नहीं होते हैं। शेष भाग में से जो है लगभग 97.3% भाग समुद्र है। वह 21% जो है ध्रुवीय हिम क्षेत्र में अवस्थित है। यानी कहते हैं कि मैक्सिमम पार्ट जो है समुद्र पानी से घिरा हुआ है, या आपको ध्रुवीय जो है हिम क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका केवल 0.6% जो है अलवणीय जल, वायुमंडलीय जल वाष्प, भूमिगत जल या मृदा जल के रूप में उपलब्ध है। कहते हैं हिम छत्र यानी आइस कैप एक समुद्र में गहराई में जल जो है भंडार का निर्माण करते हैं। कहते हैं सौर विकिरण एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल जल चक्र के मुख्य चालक बल है, और कहते हैं वाष्पीकरण यानी वाष्पीकरण के कारण संघ एवं वर्षा जल चक्र में जो है नियत जो है मुख्य प्रक्रिया है, और जो एक दूसरे का स्थान लेती ही रहती है। अगर देखा जाए तो समुद्री झीलें, तालाब, नदियाँ आदि का जल सूर्य की ऊष्मा ऊर्जा के कारण वर्षीकृत होती रहती है, यानी जलवाष्प बनता रहता है। पादपों की जो है पत्तियों से भी बहुत मात्रा में जल निकलता है, और जल हवा में जो है वाष्पित अवस्था में रहता है। बादलों का निर्माण करता है जो हवा के साथ गमन करते हैं। बादल पर्वतीय क्षेत्र में वनों के ऊपर ठंडी हवा से निकलते हैं और सदिन होकर वर्षा करते हैं, जो गुरुत्व बल के कारण संपन्न होती है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही बरसात होती है, ये तो आम बात है। कहते हैं औसतन 84% भाग जल समुद्री जल से वाष्पित होते हैं, जबकि 77% भाग जो है इसके वर्षा द्वारा पुण्य प्राप्त होते हैं। यानी 77% जो होता है पुण्य जो है रेन से हमें प्राप्त हो जाता है। जल चक्र से
60% को समुद्री वाष्पन का संतुलन नदियों के प्रवाह के कारण ही होता है, क्योंकि स्थलीय वाष्पन जो होती है वो 16% होता है, जो वर्षा के 23% होती रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर हम एक फ्लो चार्ट को देखें तो आप देखोगे कि सिंपल फ्लो चार्ट है। ये एक तरह साइकिल भी आप समझ सकते हो कि समुद्री पृथ्वी जो है पृथ्वी की सतह के वाष्पन करता है, फिर बादल का बन जाना, अवक्षेपण होती है और सतह पर प्रवाह और जमीन जल के रूप में एकत्र हो जाता है। और ये क्या होता है कि धाराओं और नदियों में चला जाता है और पादप में जाता है, और समुद्र की ओर प्रवाह भी होता है। तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर मान्य हैं। जब यह धाराएं और नदियों में जाता है तो पादप द्वारा ग्रहण की जाती है, और पादप जो होती है वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन के द्वारा जो है ये दोबारा से वो आपस लौटा देती है। तो ये जो है हमारा जल चक्र का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा।